today, the session today will be focusing on the art of note making. I know the economy is down. I know the GDP is crashing. So we are not here talking about that note making, but actually those notes which are more valuable for anyone who is preparing for a competitive examination, especially when it comes down to the law entrance examination. There's no talk on this front that how to make notes, because what happens is if somebody tells you how to make notes, the relevance of that other person who is on the other side uh, uh, gets lesser, because now your reliability on that particular person to provide you notes uh, goes uh, goes down to some low extent. And most of the time we have seen when we are talking to our friends and across 100-200 ले ले पर notes दिला दे, ठीक है, but after this session I think that this will come to an end, because we will be discussing the art of note making. So it doesn't matter that when I say art then you are saying sir मेरा तो science था मैं कैसे बनाएगा, ठीक है. So this is not the point, ठीक है. So without much ado, let me take you through this entire session, ठीक है. And we will be talking about this how to make notes for law entrance examination, ठीक है. अब why specifically I've decided to take a session on the law entrance examination, because what happens is I don't see discussion over this segment that how to make notes, and these are very important. This is a very important concept for anyone who is preparing for law entrance examination. Why? Because a law aspirant is primarily within this gap of 1 year or 2 year is preparing for more than one entrance examination. What happens is if you're preparing for civil services, you know you are preparing for civil services, and the syllabus will somewhat change for peace state level of PCS services. But when it comes down to the law entrance examination, we have seen that the pattern is completely different, at least from this year. CLAD has a different pattern, AILET has a different pattern. When we look at BHU, Black entrance examination, that's very easy. Then we look at MSET, again, somewhat more of the easier pattern. So, what is this easy? What is this tough? What are those important topics what are those important concepts to be kept in our mind while we are making our notes? Acha, before we talk about this note making, it will be coming to your mind that sir, I have already told you that when the ready-made material is available, you should you should rely upon this ready-made material. Why to invest more time? But that is only true to an extent that paper जो है वो अगले कुछ दिनों बाद है इस साल का, ठीक है. If it is for the next year or later on, ठीक है, then we need to understand the relevance of ready-made material versus note making. Let me take you through an analogy. You must be seeing on your screen that I have written food ordering, and you must be considering that it's a typological error. No, it's not. Consider you can make food at home. You can order food online. Which is easier? Ordering online. What happens is, what is the difference between the food which you have ordered online and which you have made at home? First thing, that's a ready-made material. Somebody has used those all the ingredients which they are using for every customer, ठीक है. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, दैट इज स्पाइसी इन नेचर, ठीक है. तीसरा चीज है, क्या वो तुम फूड हमेशा खा सकते हो? ऑब्वियसली योर आंसर विल कम डाउन until तुम्हारे पास कोई मजबूरी है बहुत ज़्यादा. So yes, I'm getting responses to no, you can't eat that for too long because it will disrupt your system, ठीक है. Your body system will get disrupted. So that being said, that is the same case with ready-made material, ठीक है. They are made for a lot of people, different set of everybody they will be helping you to realize your taste buds, but for a very short duration of time, ठीक है. बिकॉज वो सबको सूट करते हुए मटेरियल बनाया गया है, ये पहली चीज ध्यान रखो. और ज्यादा टाइम के लिए अगर अपन उसे कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है. सेम गोज विद रेडीमेड मटेरियल वर्सेस नोट मेकिंग, ठीक है. सो आप, हाँ, अगर इन दोनों में तुम्हें चॉइस दूं तो तुम कौन सा प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली होम मेड फूड, विच इज इन दिस केस नोट मेकिंग बाय योरसेल्फ, ठीक है. अच्छा, अब ये क्यों करना चाहिए? जो क्वेश्चन मार्क कम्स डाउन टू दिस, व्हाई नोट मेकिंग? बिकॉज होता क्या है, क्योंकि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीज डेज हैव बिकम लाइक सो वास्ट इन दिस सिलेबस व्हेन इट कम्स डाउन टू द लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स. जैसे ही करंट अफेयर आ गया या उसमें लिख दिया सम एलिमेंट ऑफ जनरल नॉलेज, पूरा का पूरा सिलेबस बढ़ गया. नाउ एवरीबडी, योर टीचर्स विल कम डाउन एंड से यू दैट इट्स वेरी टफ, लाइक सब कुछ पढ़ लो, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है. सो कहने का मतलब क्या है? टेल यू ऑल दोस माउंटेन ऑफ टॉपिक्स
And there are few kids who love collecting books, who love collecting notes, who love connecting these study materials, and they will make another mountain in their own room. One is the mountain of topics which the faculty is still, and then they are making the mountain of these no these books and magazines, etc., etc. So to avoid that mountain making, okay, note making is essential. It helps you in consolidation of ideas. What happens is a lot of time if I'm reading a particular concept, like I was teaching you this particular this passage with respect to brutality against women, and then all of a sudden I was telling you, okay, these are few other topics which are related to women and law, and I told you that these are very very important, ठीक है. I told you इसी से कोरिलेटेड होगा सबरीमाला वाला, ठीक है, वो देख लेना. इसी से कोरिलेटेड एक अदर टॉपिक होगा, ठीक है, वो देख लेना, एसिड अटैक विक्टिम्स, एसेट्रा एसेट्रा. So consolidation is necessary. So consolidation is bringing all these thoughts together. कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड हुआ, आर वी हैविंग ऑल दोज थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर पेज और दो सेट्स ऑफ पेजेस, दैट इज वेरी मच नेसेसरी. यू मस्ट नॉट बी डूइंग कि पहला पन्ना बना लिया है, इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखा है, एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो अपन ने उसको क्या कहते हैं 30 पन्ने बाद लिख दिया. नाउ वी यू हैव नो दिस कंसोलिडेशन. एक मटेरियल इधर पड़ा हुआ है, एक मटेरियल उधर पड़ा हुआ है. सो कंसोलिडेशन इज वेरी मच नीडेड. ठीक है. No, it's for all subjects. Consolidation is very much needed. What happens is in this technological age, understand friends, you rely upon much more resources. ठीक है. अब उन resources को consolidate. मान लो कि मुझे एक टॉपिक पढ़ना है. For the matter, if I say I have to study a topic syllogism, ठीक है. अब मैं वो मैं प्रोजेक्ट मेवरिक के जो एलएमएस है उसमें जाके भी पढ़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी उसके साथ लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बुक भी उठा रहा हूँ और फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को लगा रहा हूँ. सो नाउ दीज टू थिंग्स, जो मैंने इसके नोट्स बनाए, जो मैंने लेक्चर देखा और जो मैंने बुक से नोट्स बनाए, क्या मैं इन्हें अलग अलग रख दूं? ठीक है. क्या मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे लिए यूजफुल होगा रिवीजन के लिए? नहीं यूजफुल होगा. ठीक है. तो मुझे इन्हें कंसोलिडेट करना पड़ेगा. ठीक है. दैट इज व्हाट इज नेसेसरी. नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज, वाइल दे आर देखो, पहली चीज बहुत जरूरी है कि जब हम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हैं. ठीक है. पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हैं, एंड दैट इज नॉट आइडियली अ वे ऑफ मेकिंग नोट्स. फर्स्ट रीड, अंडरस्टैंड, देन मेक नोट्स, because your notes will be useful for what is the relevance of notes. The relevance of notes is to help you in revision. ठीक है. जो पेपर के पहले जो आप रिवाइज करने वाले हैं उसके लिए जरूरी है, वरना आप नोट्स क्यों बनाएंगे? आपको कोई बेचना थोड़ी ना है अपने नोट्स बना के. ठीक है. कि मैं नोट्स बनाऊंगा, बहुत सुंदर सुंदर बनाऊंगा, बेच दूंगा मैं. ठीक है. there is no market itself because see the changing nature of the paper. uh, that being said, ठीक है, तो पहले पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, उसे कंसाइज फॉर्म में लाओ. ठीक है. उसे समझो तो तुमने क्या पढ़ा है, फिर उसके बाद उसको लिखो, एंड दैट विल हेल्प यू इन योर रिवीजन. सो अपन नोट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपन रिवीजन कर सकें. ठीक है. और रिवीजन क्यों करेंगे? बिकॉज हम उस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं और उसका हमने समरी ब्रीफ पॉइंटर्स बनाए हुए हैं जो हमें से पढ़ना है, जो हम सोच रहे हैं पेपर के लिए रेलिवेंट है. What does note making does? It gives you the confidence. Like somebody, you मैंने पूछा तो मेरा टॉपिक आता है, somebody says हाँ सर आता, मैंने नोट्स बनाए थे. Somebody who made a notes will always have a more confidence. uh, ये देखना, कभी भी तुम अपने क्लास में हो, दैट पर्टिकुलर दोज पीपल हु कॉल यू लाइक पढ़ाकू, हैशटैग इन्वर्टेड कॉमर्स में. ठीक है. कि दोज पीपल you see are filled with confidence, not because they are padhaku, just because they have a set pattern of studying first and foremost. The second, they have those confidence derived from the hard work which they have done in making notes. ठीक है. In understanding the topic. ठीक है. तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस इज द की. With a confidence you can crack a paper. ठीक है. uh, it adds to your preparation. Like go into two modes. One, paper होगा नहीं निकलेगा. The second, वो निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा. The confidence level is different. So that confidence also builds upon the note making prospect. ठीक है. I hope इतनी बात तुम लोगों को क्लियर हुई होगी. ठीक है. अब आगे चलते हैं. How to make notes. Now this is another point like which is worrisome for a lot of people. Okay. Because once you talk to someone how to make notes, most of those people are some who are preparing for civil services or judiciary, or are too not too young to tell you. So सबसे पहले कॉपी पेस्ट नहीं करना है. ठीक है. कॉपी पेस्ट कर दिया तो फिर फायदा क्या हुआ?
ठीक है, फिर तुम समझे कहाँ पे उस चीज को, ठीक है। वन इज तुमने एक चीज देखी, बहुत अच्छी लगी, तुमने एक कॉपी पेस्ट मार दिया बिल्कुल, ठीक है, तो तुम्हें समझ में कहाँ आया, तुमने तो उसे पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। तो वो नोट्स बनाने का फायदा क्या हुआ जब तुम कभी उसे पढ़ने ही नहीं वाले, जब तुमने पहली बार में ही उसे नहीं पढ़ा, तुम नेक्स्ट बार कैसे उम्मीद कर रहे हो कि तुम उसे पढ़ोगे। फर्स्ट थिंग तो कॉपी पेस्ट मत करो, पहले समझो फिर लिखो, ठीक है। समझना फिर लिखना, ठीक है, फिर लिख के उसको रिवाइज करना, ये 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक। प्रिसाइज नोट्स हमेशा प्रिसाइज बनाओ, कंसाइज बनाओ, ठीक है। कंसाइज इन द सेंस कि अगर यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए, किसी को नोट्स बनाने तो क्या नोट्स बनाओगे, ठीक है। अगर बहुत ही कंसाइज बनाने हो, मैंने सब कुछ पढ़ लिया यूनाइटेड नेशंस के बारे में, देन आई विल से कि ये किस कॉन्फ्रेंस में किस विच वाज द कॉन्फ्रेंस विच वाज रेलेवेंट टू इट, पॉइंट नंबर वन। सेकेंडली क्या कहते हैं, ये कब फाउंड हुआ, उस डेट को मैं याद कर लूंगा। तीसरा, इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स याद कर लूंगा, उनके हेडक्वार्टर्स याद कर लूंगा, उनके मेन फंक्शंस याद कर लूंगा। यूएन चार्टर एक बार ऊपर ऊपर से देख लिया तो उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनको एक बार लिख लूंगा, बस। अब अब वो करने के लिए तो मैं ये थोड़ी ना करूंगा, मैं यूनाइटेड नेशन का एक यूएन चार्टर गया, मैं फोटोकॉपी की दुकान पे खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ भैया इसको प्रिंट करके दे दो, बिकॉज सर ने बोला है वो यूनाइटेड नेशंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नोट्स हैव टू बी प्रिसाइज, ठीक है, जितने कंसाइज, जितने प्रिसाइज हो उतना अच्छा है। और नोट्स बनाए कैसे, बुलेट पॉइंट्स में बनाए, देखो ये पूरी हम लोग जो बात कर रहे हैं बुलेट पॉइंट्स में कर रहे हैं, देयर इज वन वर्ड आई एम राइटिंग बट आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। ऐसे जब तुम क्या होता तुम लोग भी ऐसे वन पॉइंट, कभी कभी बुलेट पॉइंट्स लिखते हो, जब तुम डिबेट में गए होगे या डिक्लेमेशन किए होंगे तो तुम हमेशा बुलेट पॉइंटर्स लिखते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखते हो, ठीक है। अब तुम जैसे मम्मी सब्जी के लिए बोलते हो, तुम आलू आलू लिखते हो, तुम ये नहीं जो जितना मम्मी ने एक्सप्लेन किया है कि आलू ऐसी ऐसी हो, ठीक है। सो बुलेट पॉइंटर्स दैट गोस विद नोट्स मेकिंग ऑल्सो, ठीक है, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नोट्स मेकिंग में भी बुलेट पॉइंटर्स, ठीक है। दिस विल हेल्प यू इन रिवीजन से, ठीक है। अब बुलेट पॉइंटर्स होगा, जल्दी से याद होगा, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है, अपन उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दैन राइट, ठीक है, दैट आई एम सेइंग इट अगेन, पहले समझो फिर लिखो, ठीक है। लिखने के बाद समझना, leave it on the authors, like leave it on those people who write for others, ठीक है। you are writing for yourself, you are writing for your preparation, ठीक है। नो पर्सनल व्यूज, अब कोई भी टॉपिक पढ़ो, मान लो तुमने सबरीमाला वाला इंपॉर्टेंट इशू पढ़ा, उसके बाद तुमने क्या कहते हैं एक एडिटोरियल पढ़ा, उसके बाद वो जो एडिटोरियल में बोला गया है ना उसको लिखो, ठीक है। ये नहीं कि अपना पॉइंट लिख दो, नो नंबर नहीं, लास्ट पॉइंट तुमने अपने आप से ऐड कर दिया, ठीक है। आई समराइज इट एट दिस इज द दिस शुड नॉट हैव बीन डन, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू आर बीइंग टॉट अ टॉपिक और somebody is discussing, you put your point of view, that is not needed at all, ठीक है। until unless the question comes out, what do you feel, ठीक है। so these questions don't give you that advantage, what do you feel, ठीक है। they ask you what does the author felt, ठीक है, what according to the author is correct, what according to the author is not correct, what is true according to the passage, ठीक है। these are the nature of questions, ठीक है, जो पूछे जाते हैं। तो अपने पर्सनल व्यू अपने नोट्स में नहीं लिखने हैं, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। तुम अपने नोट्स जब दोबारा रिवाइज करोगे तो ये थोड़ी ना रातों रात तुम्हारी व्यूज बदल जाएंगे, ठीक है, तो तुमने लिख लिया, डोंट डू दैट, डोंट डू पेपर्स कटिंग, ठीक है। अब हुआ क्या, लॉट ऑफ पीपल डिड कि एडिट, सर ने बोला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला था हिंदू इज इंपॉर्टेंट, सर ने बोला इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेना, मैं क्या करता हूँ, ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, आई हैव सीन इट इन सजेस्टेड रीडिंग, सो व्हाट आई विल डू अ कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैं इसका क्या करूंगा, मैं इसकी पेपर की कटिंग कर लूंगा, ठीक है। वो जो ऐसे नहीं होता, अगला दिन हो गया, सुबह कैची चला दी और ऐसे करके एक पेज कर दिया, स्टेपल कर दिया, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सी एक कॉपी सजा दी है, हर साल पूरे साल का एडिटोरियल उसमें है। भाई क्यों, क्या तुम उसको बाद में रिवाइज करने वाले हो, ठीक है। वो जो एडिटोरियल, तुम ये समझो पेपर के तुम्हें 1 महीने पहले तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, ठीक है। तुम वो एडिटोरियल की कॉपी निकालोगे, एडिटोरियल की कॉपी निकाल के तुम ऐसे ऐसे घुमाओगे और फिर तुम समझोगे अरे ये तो फिर ये था, इस समय एडिटोरियल आया, इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड एडिटोरियल आया, अब ये इट बिकम्स कंफ्यूजिंग यार, तुम्हारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ पेपर कटिंग, ठीक है। तुम एक बढ़िया सी कॉपी बना दोगे जो SUPW का एग्जाम नहीं है तो किसी काम की नहीं है, ठीक है। लेट इट बी डन बाय पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। अपने लिए क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉल कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट, टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नहीं हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उस दिन वो टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज उस दिन पेपर में लिमिटेड टॉपिक आए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है वो टॉपिक जब तुम पूरे एक प्रिसाइज व्यू में देखो, ठीक है, तो तुम्हें ना लगे। अब जैसे पेपर की बात करते हैं, इस साल क्लैट का जो पेपर होगा उसमें 6 पैसे जाएंगे, डू यू एग्री, यस।
सिक्स पैसेजेस विल ओनली कम इन, अगर लीगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। और तुमने अपनी कॉपी में कितने चिपका रखे हैं, ठीक है, 365, लाइक मान लो 300 दिन का भी मान लेते हैं, तो 300 डे के तुमने कम से कम तीन चिपका रखे हैं, 900 तुमने पैसेजेस चिपका रखे हैं, पेपर में कितने आने हैं, सिक्स, ठीक है। So do you see any relevance of this particular exercise coming out and making the khach 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 and then doing this? Understand from a perspective, paper के पहले will you look into this thing? If you are not looking into this thing, don't do that. ठीक है? If you are very sharp memory, don't do that. If you are making an online notes, don't do that. ठीक है? सिंपल लैंग्वेज रखो, लैंग्वेज जो होनी चाहिए नोट्स की हमेशा सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि वो नोट्स तुम अपने लिए बना रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। और नॉट सेंडिंग इट I've seen on a lot of Telegram channels somebody is asking, please मुझे इसके notes देना है, and everybody is taking a picture of them and giving it to the other person, and other person is saying thank you, you shared it with me. It's like completely, what are you going to do with somebody's other's notes? That's their perspective, that's what they understood from reading a particular material. It will not be the same case with you, okay? So then you are summarizing the notes which is made by this particular individual, and you forgot what was the original source, okay? So that is again should not be the notion. Simple language रखो, जितनी simple हो जाए, ठीक है। और जितनी simple language होगी उतना तुम्हें रिवीजन में आसान होगा। ओन वर्ड्स में लिखो, ठीक है, समझो जो मैं कह रहा हूँ, ओन वर्ड्स में लिखो, तो उससे क्या होगा, तुम्हें रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। और अच्छा, एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुमने हमें देखा होगा क्लास में भी, वहाँ टॉपर्स होते हैं, उनके नोट्स में एक चीज बहुत ही कॉमन होती है, वो मार्जिन रखते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा एक स्केल लेके ऐसे पहले एक इधर लाइन, ये पहले जमाने में था। अब क्या हुआ है, पिछले फ्रॉम द लास्ट 7 years आई एम लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर एंगल, मतलब मान लो, तो फिर ऐसे राइट हैंड साइड भी अब नाउ इट्स लाइक, अब ब्लैंक कॉपी चलने लगी है ना, मतलब पहले होता था वो लाइन वाली कॉपी आती थी। नाउ वंस यू गो टू 11th एंड 12th, यू गेट दीज काइंड ऑफ कॉपीज, ठीक है, यू सी, ठीक है, both side completely empty, and then you write, then you keep on, then you write it, and keep the margin, so that once there is a margin you can write something on this, ठीक है। एंड एक और चीज है, ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स, ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस, ठीक है। Try to make flow charts. This eases your preparation, ठीक है। This is again not my notes, these are notes of my brother, ठीक है। So try to make these flow charts, ठीक है। They are easier, they will help you in grasping those topics much easier, ठीक है। तो मार्जिन रखो ऐसे जिससे कुछ भी, मतलब मान लो मैंने एक टॉपिक आज पढ़ा, उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ, मैं फिर से उस पर लिख दूंगा, ठीक है, उस बगल में मार्जिन में, ओके दिस हैपेंड, डेट बगल में लिख दूंगा, सो दिस इज द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्जिन का रखना, ठीक है। वो जो स्कूल में नहीं सिखाते थे एक हाथ की दूरी रखो, तो वैसे ही मतलब यहाँ पे एक स्केल रखो, ऐसे लाइन खींच लो दोनों साइड, ठीक है, बीच में अपना मैटर लिखो, इस साइड अपडेट्स के लिए छोड़ दो, ठीक है, कि ये चीजें हुई, ठीक। सो दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग नोट्स विच आर यूजफुल, एंड दिस टर्म यूजफुल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। व्हाट आर द गाइडलाइंस, लाइक गाइडलाइंस मैं क्या बताऊंगा, मतलब इसमें मेरा व्हाट ज्ञान आई वांट टू गिव, ठीक है। I've already told you blank sheets अब आने लगी हैं, जब अपन 11th 12th में होते हो तुम लोग, once you start solving, when if you have from science background, you have this uh, physics, chemistry and everything, so you start solving it on blank sheet because you need to make that diagram, एक monkey दूसरा monkey, ठीक है। I don't know about commerce, what happens there, ठीक है, but they must also be having this kind of thing to make something on the paper, ठीक है, balance sheet basically। देन नोट्स जो होने चाहिए वो रफ होने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब देयर फ्यू पीपल हु मेक नोट्स, यार देखो, इफ यू ओनली गेट, इफ यू मेक इट कलरफुल देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, मेक इट कलरफुल, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है, नोट जो जितने रफ में चले उतना अच्छा है, ठीक है। इन द सेंस कि उसी मतलब ब्लैक वाइट जो नॉर्मल चल रहा है, ब्लैक ब्लू यूज करो, अंडरलाइन करो, गोल गोल ऐसे करके याद करो, मतलब दिस इज हाउ it is the notes are made and they are taken into the memory। रफ नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब एक स्केल वेल लेके बैठ गए, पहले कर्सिव राइटिंग की किताब खरीदी फिर बना रहे हो, या हम नंबर नहीं मिल रहे हैंड राइटिंग के, ये समझ लो, कॉलेज में जाके कर लेना, ठीक है। तो रफ नोट्स बनाने हैं, ऐसा नहीं कि मतलब नोट बनाने के लिए पूरा 3 घंटे पढ़ा, 3 घंटे नोट बना रहे हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। उसको ऐसा बनाओ कि बस रिवाइजन के काम आए, बी प्रिसाइज, अगेन इट्स द नॉर्म। Use flowcharts. I have already shown you, and you know how flowcharts work. Like in your on your screen right now is a flowchart. ठीक है। Then syllabus का ध्यान रखो। What happens is, why I like the syllabus which is under Project Maverick. The one reason, despite I am being seeing everything across the countries,
बिकॉज देयर इज अ सिलेबस एटलीस्ट अंडर प्रोजेक्ट नेवरिक्स, ठीक है, जो मतलब एक हमें बताता है ये गाइडलाइंस हैं, ये चीजें तो कवर करनी ही करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे अब लिख दिया इंग्लिश है तो इंग्लिश होगी, मतलब उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उसके बाद भी कुछ बेसिक्स हैं। एंड तो इस सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। पहली चीज सैम्पल पेपर देखो, उसको समझो, पास्ट ईयर पेपर्स देखो। अब तो पास्ट ईयर पेपर क्लैट के लिए नहीं, सैम्पल पेपर इस साल का जब पेपर हो जाएगा तो बिकम पास्ट ईयर पेपर, वो देखो, ठीक है। सिलेबस देखो और उसके हिसाब से नोट्स बनाओ। अब ये नहीं हर चीज के नोट्स बना लो, ठीक है, कि कंगना रनावत होम वाज डिमोलिश्ड बाय बीएमसी, लाइक दिस इज इररिलेवेंट, ठीक है। नहीं आएगा, मतलब क्लैट में तो नहीं आएगा, ठीक है, यूपीएससी में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो जोक नहीं होता कि मतलब नोट कर लूं क्या पता नहीं यूपीएससी में आ जाए, ठीक है। तो तुमसे भी कोई ऐसे मतलब फर्जी के टॉपिक बोले ना तो बोल दो नोट कर लेता हूँ कहीं क्लैट में ना आ जाए, ठीक है। जो दैट पर्टिकुलर स्टॉप पर्सन विल नॉट टेल यू दोस अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। So understand the syllabus, understand the past year paper or sample paper so that it helps you in making those notes. Of course, the next thing is some people will say that sir, it's a digital economy, the classes are going online. Sorry, that it's digital world and everybody the classes are going online, the sessions are going online. So should we use online platforms to make notes? Yes, you can do so. With the enhancement of technology, that has become much easier. How Evernote, you can use Evernote to make notes. You can use Google Docs to make notes. You can use Google PowerPoint to make their PowerPoint feature too. You can use that to make notes. Also, when you think that there is something important and you can't open any of these things, open on your phone. There will be a notes folder, notes application right there. Send it to yourself. Okay. That way, if you're like an technology loving person, then use these digital platforms. But if you're not, if you see, a few days back I just told you everything would have changed except one thing. That is the note taking thing. Let platforms come and go. The best note taking will always be on pen and paper. That gives you the thought process of thinking when you're writing something. That will never come down when you are writing on these online platforms. You will write and you will forget. Okay. So but yes, you can use these platforms and update those informations. Okay. So my saying is that you can use digital platforms if you know how to use them. Okay. That being said, that was the overall idea from that was the overall idea I had to share with you on this note making process. Okay. Again, let me take you to the take you through the entire summary in like next 2 3 minutes. And if you have any question by then, you can just type on the chat box. So, how to make notes for law entrance examination? This is actually true for all other entrance examinations too, but our primary focus is law entrance examination. Okay, law entrance examination बहुत है ये ध्यान रखना. Ready-made note versus material versus note making. So now I hope when somebody asks you why you are making a note, you can tell them about this analogy, food ordering one. Then mountain of topics. So to make it concise, consolidate that entire material, and when to do it. After you read something and you get it in your brain, then you write it down in the bullet pointers or a flow chart. It will be useful for you when it comes down to the revision segment. It will help you in gaining that much needed confidence. ठीक है. Therefore, you see, जब एग्जाम होते हैं स्कूल्स में या कॉलेज में, तो यू सब लोग भागते हैं कि नोट्स लेके आओ, फोटोकॉपी करवा लो. वाई? बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. बट अगेन यू डोंट गेट दोज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब नंबर आ सकते हैं बिकॉज यू हैव डन दोस रट्टाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट. बट यहाँ पे रट्टाफिकेशन काम नहीं करता बिकॉज दिस इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम. यू हैव टू टिक मार्क दोज थिंग्स. ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. तो यहाँ पे योर नोट्स विल हेल्प यू ओनली. ठीक है. अंडरस्टैंड दिस. Okay, how to make notes? Again, no copy pasting. Precise होने चाहिए, bullet pointers में होने चाहिए. Understand and write. No personal view. Don't do paper cutting. Don't don't do paper. If you're doing it for like तुमने 30 दिन में एक पेपर की कटिंग की है, then it's okay. Like you find कि ये information बहुत जरूरी है. Do that. ठीक है. डेली डेली दो तीन ऐसे ऐसे कटिंग वटिंग मत करो. ठीक है. मतलब तुम्हें लगा कि आज बहुत ही कुछ ऐतिहासिक हो गया, ठीक है, तो उसकी पेपर कटिंग कर लो, तब कोई दिक्कत नहीं है. या वो वाला पेपर ही रख लो ना अपनी, जिस जो भी फाइल बनाई हुई है या कॉपी बनाई हुई है. सिंपल लैंग्वेज रखो. ठीक है. सिंपल लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कीप मार्जिन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके. गाइडलाइंस ऑलवेज ब्लैंक शीट्स का यूज करो. ठीक है. रफ नोट्स बनाओ. ठीक है. प्रिसाइज रहो. फ्लो चार्ट्स, सिलेबस का ध्यान रखो. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अगर यूज कर सको करो. एंड दिस इज द वे यू मेक नोट्स. ठीक है.
Uh, of course, there are few more things which you can do in this particular process. यार मॉक मॉक जो टेस्ट होते हैं ना, या जो सैम्पल पेपर्स हैं, इनके भी नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? कि इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने कल तुम लोगों को बता दिया था। तो इस जो आज का सेशन है, इसे कल के सेशन के साथ अगर मर्ज करके देखोगे ना, तो इट विल बिकम सो यूज़फुल टू यू दैट जो द नीड फॉर मेंटर्स है ना, शायद वो ना भी रहे, बिकॉज़ यू नो दीज़ थिंग्स, यू नो हाउ टू मेक नोट्स, यू नो हाउ टू गो अहेड विद योर मॉक्स, to what to take away from mocks, what to what is that aim which you are having, that if you crack next year's CLAT, go ahead with this and nothing better than this. Okay, so all from my end for the day. If you have some questions, you can just write on the chat box and I will be no, it's not only for G, it's for all subjects. Okay. So that's all from my end for the day. Tomorrow is All India Open Mock, and I hope you do well in that, so that once we analyze that, you are there to tell me the right answer. Or if you miss something, you can just ask me about those particular concepts. That's all. All the best.